हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि के पॉप इंडिया कॉन्टेस्ट 2020 में ऑनलाइन राउंड्स के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं और इसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों बात करें ऑडिशन प्रोसीजर की। दोस्तों ऑडिशन प्रोसीजर में सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑनलाइन राउंड रहेगा एंड सेकेंड राउंड भी आपका ऑनलाइन राउंड रहेगा, जो कि आपका रीजनल राउंड रहेगा। एंड थर्ड राउंड आपका फ्रॉम ईच 20 regional, one finalist in vocal and one finalist in dance category will be chosen. So there will be total 40 competitor from 20 regions in final round. And they will compete to be a winner of this contest. And not important, you will have to perform same song in all three rounds. You can't change your song after performing it in online round. You will perform same song that you have performed in online round. एंड दोस्तों नेक्स्ट आपका बता एलिजिबिलिटी में आपका सबसे पहले 1 पॉइंट एनी वन इंटरेस्टेड इन के पॉप अप्लाई दिस एंड Indian national currently living abroad can participate as long as they are able to attend the regional round in India. Non-Indian cannot participate in the contest. First prize winning team solo acts from previous year are not allowed to participate as the same group of member of different groups. And second prize winning team solo act from 2020 are not allowed to participate as the same group of members of different groups. Participate can submit entries for both vocal and dancing category, but not more than one entry per category. By participating in the contest, participates agree and give their permission to all related parties to record, film, photograph, audio tape, and video tape their performances and to display, publish, or distribute their work from publicly and advertising purpose. Any individual group of individuals, organizations, etc. इत्यादि associated with the current year K-pop India contest cannot participate in the contest as they will have access to all information and it will give them in additional level range and next general rules and regulations. Solo entries for dance are allowed. All participants must not till date for World Festival does not permit to solo entries. If the winner of the K-pop India contest 2020 is a solo performer, they will not get the chance to apply for the K-pop World Festival 2020 and will not get to apply again in the future. यानी आप लोग यदि सोलो एंट्रीज यानी सोलो आप परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो आपको ओके पॉप वर्ल्ड फेस्टिवल में आपको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको प्राइज ही दिया जाएगा सिर्फ। ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट द performance team must have the same number of members as the group they are covering. From example, performance team covering BTS must have 7 people in their team. यदि आप किसी भी सॉन्ग को ग्रुप में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उस ग्रुप के कितने मेंबर हैं उस हिसाब से ही आपको उतने ही मेंबर आपके ग्रुप में परफॉर्मेंस के लिए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बोथ वोकल एंड डांस कैटेगरी इन 13, यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 13 मेंबर ही रख सकते हैं एक ग्रुप में। ठीक है दोस्तों। एंड एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 4 अप्रैल 2020 11 AM IST till 28 April 2022 11 AM IST. No entries will be entertained after the deadline. आप लोग 4 अप्रैल से ये अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 अप्रैल तक ही चालू रहेगा। तो तब तक लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी से आके अप्लाई कीजिए। एंड नेक्स्ट एंट्रीज कंटेनिंग एनी ऑब्स्केंस inappropriate contents will be automatically disqualified. Multiple entries per category will lead to disqualifications. यानी मल्टीपल एंट्रीज पर कैटेगरी में मल्टीपल एंट्रीज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
any entry apart from K-pop will not be entertained. One full song must be performed. There is no limitation of once. K-pop contest 2022 India is a nationwide contest, and participants can upload video irrespective of whether their city is chosen as a regional round venue or not. Participate and must apply only to the region eh, that they are currently based in nearest to, and full names of all the participants should be clearly mentioned in the registration form. Direct point of contact provided in the registration form should be active communication. In case of any invalid, misinformation, or not fulfilling the criteria of the registration form um, will lead to disqualification. And no surprise is allowed. Throwing glitter, water, gel और any other material. आपको यदि जब वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपको कोई भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, वो भी सिंपल जैसा आपको परफॉर्मेंस करना है वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि किसी भी सॉन्ग में यदि कोई ऐसा कुछ यूज किया हुआ हो जिससे आप अलग से लेकर आए और उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। एंड props directly related to the choreography can be used in Korean culture centers. Is fit if a participant wishes to use a props in the cover, they must approach Korean culture center first. दोस्तों एक और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यदि आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में कोरियन कल्चर का जो झलक है वो दिखनी चाहिए, जिससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कि आप लोगों को सिलेक्ट कर लिए जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वोकल के रूल्स एंड रेगुलेशन। द के पॉप सॉन्ग शुड बी कवरेज 100% एंड फ्री स्टाइल इज नॉट अलाउड। यदि आप लोग फ्री स्टाइल वोकल कवर है यानी खुद का सॉन्ग लिख कर आप गाना चाहते हैं तो आपको अलाउड नहीं है। के पॉप का कोई सॉन्ग आपको उठाना पड़ेगा, किसी भी सिंगर का या किसी भी ग्रुप का। नो इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश वर्जन्स ऑफ कोरियन सॉन्ग विल बी एक्सेप्टेबल इवन ए परफॉर्मेड बाय कोरियन आर्टिस्ट। यानी आप लोग इंग्लिश सॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई कोरियन सॉन्ग है जो इंग्लिश वर्जन में किसी कोरियन आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है तो आप लोग इंग्लिश वर्जन में गा सकते हैं। रैपिंग इज अलाउड। प्लीज नोट दैट इन दिस केस द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वोकलिस्ट विल बी analyzed to mark your performance, and hence you are confident in your rapping skill and pronunciation, you can apply. Studio recording is not allowed, mix are not allowed, and merging of song is not allowed. Editing of video in any form is not allowed. We requested participate to who not use any filter, effect, or camera work, as it can be uh, perceived as editing by the judges and could lead to disqualification. All participants should film their video clearly. आपको एडिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आप लोग शूट कर रहे हैं, जो आप कैमरा एक बार रख दिया और आपने पूरा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद में बिल्कुल परफॉर्मेंस होने के बाद में वीडियो को एंड कर दिया, बस। उसमें कोई भी फिल्टर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल याद रखना है। वोकलिस्ट फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द वीडियो। यानी जो वोकल यानी सिंगिंग करने वाला है उसका फेस बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। द वीडियो शूट क्वालिटी शुड बी गुड। यानी आपको जो वीडियो शूट करना है वो ध्यान रहे कैमरा वगैरह से करना, जिससे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी आए। ठीक है दोस्तों। और वोकल शुड बी ऑडियोबल, या वोकल्स का ऑडियो भी होना चाहिए। ठीक है। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अलाउड। यानी आप लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं कोई भी उसमें, तो आपको बिल्कुल नहीं यूज नहीं करना है। जैसे अब मैं इस आपको बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं है, जैसे उसी तरीके से आप लोगों को शूट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है डांस में। तो डांस में भी यही रूल्स हैं
बिल्कुल, इसमें से कोई रूल्स भी चेंज नहीं है, सब कुछ डांस के लिए भी यही है। बस आपको यदि रैपिंग करना चाहते हैं तो वो वोकल में ही आएगा, ठीक है? इस बात को याद रखना है। दोस्तों यदि आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाइए। और अभी स्टार्ट हो चुके हैं कॉन्टेस्ट का फॉर्म, तो जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए। आपको मोटिवेट करने के लिए एक और बात बताऊँ, जो प्रियंका मजूमदार थी, उन्होंने भी 2016 में इसी इंडिया के पॉप इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। वहाँ से ही उन्होंने जो विनर बनी और कोरिया गई थी। उसी के बाद में उन्हें जेड ड्रीम्स, जो कि जेड स्टार्स हैं, उस ग्रुप ने ये प्रियंका मजूमदार को लिया था। तो आप लोगों की चांस है कि आप लोगों को भी के पॉप किसी ग्रुप में कोई भी कंपनी आपको शायद ले ले, यदि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इसमें अच्छी तरह से भाग लीजिए और अच्छी से परफॉर्मेंस कीजिए। सिंगिंग स्किल, रैपिंग स्किल एंड डांसिंग स्किल अच्छी से आप लोग प्रैक्टिस करके, हालांकि यदि 28 तारीख तक ये लास्ट डेट है इसकी, तो 28 तारीख को भी आप लोग अप्लाई कीजिए। लेकिन जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तब आप लोग अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए, आपका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कीजिए। नहीं तो आप लोग आगे जाके एक बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। फ्यूचर में आप लोग फिर दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।